What is the order of acidic strength of different types of carboxylic acid? So the concern is to make you understand if there are two or more than two carboxylic acids of different types are given, how you can arrange them in increasing or decreasing order of acidic strength. So what I will do, I will take some example as a question basically and will help you out to get to know the answer, right? Suppose I am taking some compounds out here, like one is here, it's an methoxy group here, and you have a carboxylic group right here. Another compound I am taking is just a benzoic acid. This is just a benzoic acid. And the third one with them, I am taking another compound, like this, where you have a carboxylic acid here, and again you have, suppose, a nitro group here, right? If you want to take more, let's take one more. Suppose there you have a benzoic acid here, but on the para position it has a CF3. So the question is, arrange them in order of their increasing acidic character. Let's name them. Suppose I am naming this one as A, this one as B, this one as C, and this one as D. So we have to arrange these A, B, C, D in increasing order of their acidic character. A very important thing is coming up here is that let's concentrate with the A. What you see that this is a carboxylic acid, but this group exhibit plus R effect. This group exhibit plus R effect. This group exhibit plus R effect, right? And due to that, electron, this actually, makes the electron go towards the benzene. So this is something, you can observe. So what is happening due to the resonating effect, the electron density is increasing towards the carboxylic group because it exhibits the plus R effect, and therefore it is not a very strong acid. Because what makes an acid strong is that the carboxylate ion produced by the acid should have high stability. But an electron rich species will cause a kind of problem towards the attaining the stability. So this is plus R effect, and due to plus R effect you can say this is an EDG, electron donating group. Electron donating group, and electron donating group is inversely proportional to the Ka. What that means? It is inversely proportional to the acidic strength. This is inversely proportional to the acidic strength. I am writing strength in short A.St. Now let's talk about this one, right? This one has a EWG. This has a EWG. What this EW is? Electron withdrawing group. So what will happen? This will pull all the electron towards itself. This will pull all the electron towards itself. But what was happening here? This was giving the electron towards the benzene. But right here, the electron is moving downward. So what will happen? This carboxylate anion will be highly stable. So this is definitely, a stronger acid. Now, NO2 is also a group that takes the electron towards itself. So this will also stabilize the carboxylic acid. There is no, there is neither any withdrawing group or neither any donating group. So this will be an acid, but this one is going to be slightly weaker acid than nitro, and nitro is going to be weaker than the, this trifluorocarbon, and finally this is going to be the weakest, because remember, more the electron withdrawing group, greater will be the acidic strength. So finally we come to a answer here, and that's that D is going to be the best, then it's C, and then it's B, and finally it's going to be A. So this is the order of acidic strength. This is the order of acidic strength. चलो मैं एक बार इसको हिंदी में बताता हूँ. है क्या एक्चुअली कि ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी एक विड्रॉइंग ग्रुप है, ये एक डोनेटिंग ग्रुप है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा डोनेटिंग या विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है. तो अगर ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो कार्बोक्सिलेट एनायन को स्टेबलाइज करेगा.
ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी उतनी ही ज्यादा। तो यहां देखो 3 विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां सिर्फ 2 विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, और यहां कोई नहीं है, और यहां तो डोनर ग्रुप है, तो डोनर वाले की एसिडिटी सबसे कम हो गई, और इस तरीके से इस विड्रॉइंग ग्रुप वाले में जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीसीज फ्लोरीन है, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगा। तो मैंने आपको सीक्वेंस बना के दे दिया। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं CF3COOH की बात कर रहा हूं और दूसरी तरफ ले रहे हैं CH2, ठीक है, या CH3COOH की बात कर रहा हूं। और एक और ले लेते हैं, मान लो आप ले रहे हो C, उसके बाद COOH, एक कार्बोक्सिल ग्रुप तो है ही, बट इसके साथ आपके पास एक नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है ना। अब चलो इसको देखते हैं। सबसे पहली बात, इसमें EWG ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जबकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पे भी ये भी नाइट्रो ग्रुप भी क्या है, एक पोलराइजिंग ग्रुप है, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यानी ये EDG है, और ये हमारा फिर से क्या है, EWG है। तो अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि इसमें ये मान लेते हैं ये वाला कंपाउंड हमारा C है, ये वाला हमारा कंपाउंड B है, और इसको मान लेते हैं कि ये A है। तो हो क्या रहा है, A और C तो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू B, तो यानी सबसे वीक जो होगा वो होगा B, ठीक है। B के बाद बात करते हैं A और C में से कौन होगा। अब आप याद करो कि फ्लोरीन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी विड्रॉइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, और अगर कैपेसिटी ज्यादा है तो वो एक स्ट्रॉन्गर एसिड को बनाएगा। तो इसीलिए हमारा B के बाद ऑप्शन आएगा A, और फाइनली आ जाएगा क्या हमारा C। सो दिस इज द आंसर राइट हियर, राइट। सो BAC. I have looked like I have messed up here. This is the strongest acid, then there you have this one, and then you have this one. So C, this is going to be like B, then this is going to be C. B, C, sorry for this. So B, C, and finally it's A here. ठीक है, बिकॉज A में 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और यहाँ पे आप देखो क्या नाम है, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो आप कह सकते हो कि एक विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी एक लगा हुआ है। तो इस तरीके से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका कम, और सबसे कम इस वाले का। एक और एग्जाम्पल आप करके देखो, फिर आपको और अच्छी तरह से पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जैक्टली मान लेते हैं आपके पास है HCOOH, उसके बाद है सपोज यू हैव CH3OH, CH3COH, ठीक है, और एक है आपके पास फिनाइल यानी C6H5, COOH। अब मान लेते हैं कि इसको आपने नंबरिंग कर दिया 3, इसको आपने नंबरिंग कर दिया 2, और इसको नंबरिंग कर दिया 1। और फिर से क्वेश्चन वही है कि इनको भी अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं कि नो EWG, इसमें क्या है, ना तो कोई डोनेटिंग ग्रुप है ना कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, तो आई एम जस्ट राइटिंग नो EWG, नो EDG, ठीक है। तो इसलिए ये एसिड तो है, बट अब यहां पे देखते हैं, यहां पे अल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो यहां पे क्या हो गया EDG, यानी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो आप, अगर आपको ये ठीक से नहीं बताया तो मैं थोड़ा सा आपको इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताता हूं, तब आपको पता चलेगा कि इसमें डोनेटिंग ग्रुप है या विड्रॉइंग ग्रुप है। ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो होता क्या है, यहां पे ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से ये पाई बॉन्ड यहां पे आता है, ठीक है। तो इतने से आपको समझ में आ गया होगा कि ये -R इफेक्ट देता है। क्या देता है ये? -R इफेक्ट। तो -R इफेक्ट देता है, तो आप कह सकते हो कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये फिनाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप की ओर इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, राइट। तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया आपका 1, ठीक है। 1 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद होगा आपका, हाँ अब इसमें कंपेयर करो, यहां पे देखो थोड़ा स्टेबलाइजेशन है, तो थोड़ा स्टेबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया, यहां पर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए 1 के बाद 3 आ रहा है, और 3 के बाद फाइनली क्या आएगा, 2 आएगा। 2 में क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें कंप्लीटली कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं आ रहा, एक सीधा डोनर ग्रुप है, डोनर ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को कार्बोक्सिलेट पे बढ़ाएगा और उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो इस तरह से आप
कोई भी कंपाउंड ले करके ये डिसाइड कर सकते हो कि किस कंपाउंड का एसिडिक ऑर्डर दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होगा। चलो इसको यही खत्म करते हैं।